Assalamu alaikum. Welcome to another lesson from class 9th biology. This is chapter 8 nutrition. So let us begin our topic, which is 8.2.1 effects of water and dietary fiber. Water. 60% of adult human body is composed of water. This we have already covered in our first chapter कि human body को जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है दैट इज़ वाटर जो कि 60% है. देन नियरली जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं लाइफ सस्टेन करने के लिए उसको एक्वियस एनवायरनमेंट चाहिए, कोई ना कोई वाटरी एनवायरनमेंट चाहिए. सो दैट इज़ ऑल्सो द मेन रीज़न वाई द बॉडी इज़ composed of 60% water. Water also functions as an environment in which water-soluble foodstuff is absorbed in the intestine and the waste products are also eliminated in the form of urine, which is water. And water also plays an important role in maintaining body temperature. जैसे कि स्वेटिंग होती है, जब बॉडी हीट अप हो जाती है तो बॉडी स्वेट रिलीज करती है स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू ताकि बॉडी ठंडी रहे. Severe dehydration यानी कि पानी की कमी it may results in cardiovascular problems. Cardio heart, vascular heart related vessels जो हैं यानी arteries और veins, heart related arteries और veins और the heart इनके problem हो सकते हैं अगर severe dehydration हो जाए. The estimated water requirement of an adult is 2 liters per day. Sources क्या है पानी के? The normal natural water, milk, juice fruits and vegetables. Next is dietary fiber, also known as roughage. ये जो dietary fiber है ये indigestible होता है. It does not digest in the body. It is found only in plant food. वो food जो plants से आए directly उनमें पाया जाता है डाइटरी फाइबर. ये अनडाइजेस्टेड ही स्टमक के और स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू पास होता है. दो तरह के हो सकते हैं डाइटरी फाइबर, एक वो जो इनसॉल्युबल है जो बिल्कुल डिसॉल्व नहीं होता, एक वो जो सॉल्युबल है जो कि डिसॉल्व हो जाता है. जो इनसॉल्युबल है दे ट्रेवल्स क्विकली थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन्स. इनका सोर्स है व्हीट बार्न, cereals, skin peel of many fruits and vegetables. Soluble dietary fiber वो फाइबर जो dissolve हो जाता है, break down and as it passes through alimentary canal. Sources है oats, beans, barley and many fruits and vegetables. Fruit and vegetable का जो pulp होता है that is soluble, लेकिन जो उसका peel होता है that is insoluble. Mostly प्लांट्स जिससे जो फूड आता है वो प्लांट्स सेल्स होते हैं. प्लांट्स सेल्स में एक केमिकल ऐसा होता है जो कि ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर पाता. उस केमिकल का नाम है सेल्यूलोज. सो दिस इज इनडाइजेस्टेबल एंड इट हेल्प्स द इंटेस्टाइन टू हैव समथिंग टू पुश. सो फाइबर प्रिवेंट्स या रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन. कब्ज को रिलीफ या प्रिवेंट करता है. क्यों? क्योंकि देयर इज ऑलवेज समथिंग इन द इंटेस्टाइन मसल्स फॉर कॉन्ट्रैक्शन. टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन reduces the risk of many other disease. Soluble fiber helps in lowering blood cholesterol level and sugar level, while the insoluble fiber they help speed up the movement of carcinogens यानी कि cancer causing agents from the intestine. Next is digestion in humans.
So jump on to page number 157, that is digestion in humans. तो डाइजेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिससे लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं. लार्ज मॉलिक्यूल्स बहुत मुश्किल होता है डिफ्यूज़ करना, बहुत मुश्किल होता है उनको एब्जॉर्ब करना. दैट इज़ वाई हमें उनका स्मॉलर वर्जन चाहिए. तो to break them into small molecules that are digestible, that are diffusible, that are absorbable, this process is called digestion. So we can define digestion as, it is defined as converting such large and non-diffusible molecules into smaller and diffusible molecules. So these are the large molecules, carbohydrates, lipids and proteins. इनको convert करना है into small molecules. Here we need the workers, the enzymes which will convert them into small molecules. तो हमारे पास enzyme कौन से हैं? maltase, lipase, protease. ये enzymes help करेंगे हमें carbohydrate को smaller products में convert करने में, simple sugars में. लिपिड्स को लाइपेज कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसिरोल्स में, और प्रोटीन को कन्वर्ट करेंगे अमाइनो एसिड में. नाउ दीज अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स एंड शुगर्स आर मोर एब्सॉर्बेबल एंड डिफ्यूजिबल देन दीज. So this is called digestion, converting large molecules into small molecules. So human की जो digestion है वो इन सब प्रोसेस से गो थ्रू होके मिलती है. जैसे इंजेक्शन यानी कि एक चीज़ को अंदर लेना, इंजेक्ट करना. डाइजेशन वो जो मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन करना इनटू सिंपलर. एब्जॉर्प्शन जब आप ब्रेक डाउन करोगे तो उन स्मॉलर प्रोटीन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करोगे. एसिमिलेशन कन्वर्ट करना उन सिंपल फूड को इनटू कॉम्प्लेक्स मटेरियल जो कि बॉडी को चाहिए. डिफिसेशन जो बॉडी को नहीं चाहिए उनको एलिमिनेट करना. So these are the processes which is involved in the nutrition of human. Then question भी आ सकता है इस पे कि what are the phases of nutrition in humans? So you have to write down ingestion, which is the process of taking in food. Digestion, which is the process of breaking down complex substances into simple. Absorption, एक दफ़ा ब्रेक डाउन हो जाए into simpler substance, वो simpler substance आराम से diffuse हो जाएंगे. So it is the diffusion of digested food into blood या lymph. Assimilation, जो आपने nutrients लिए हैं simple form में उनको use भी करना है body में, तो that is assimilation. Convert करना उन absorbed simple food को into complex substances that the body has. Diffusation, all those elements which are not in use are eliminated from the body. 8.3.1 Human Alimentary Canal. Now this is a long tube which begins from mouth and ends till the anus. So you can say the digestive system of human consists of a long tube that extends from mouth to anus. This is called alimentary canal. Its main sections are oral cavity. Now this is the oral cavity जो कि mouth, अगर ये mouth है तो mouth की behind start होना शुरू हो जाती है. This is the oral cavity. Next is pharynx. Pharynx mouth के बाद oral cavity में दो tubes आती हैं. एक trachea जिसको हम lungs या windpipe कहते हैं, एक foot pipe. इन दोनों के ऊपर जो लेयर होती है उसको हम फेरिंग्स कहते हैं. फेरिंग्स के बाद आता है esophagus. Now this is an esophagus which is called the food pipe. Windpipe को trachea कहते हैं, foot pipe को esophagus कहते हैं.
ट्रेकिया इज नॉट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, लेकिन ईसोफेगस इज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ईसोफेगस के बाद stomach. Now this is the stomach. Then comes the small and the large intestine. Now this is the small intestine and the large intestine. And after that comes some of the glands जो कि इस ट्यूब में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन उन ग्लैंड्स की सिक्रेशन हम डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज करते हैं या इस ट्यूब में कहीं पे यूज करते हैं। उसमें आ जाता है लिवर, पेनक्रियास एंड salivary glands. So this is a digestive system जिसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल है that starts from the mouth ends till the anus. उसके पार्ट्स हमने डिस्कस किए, oral cavity, pharynx, esophagus, stomach, small and large intestine. Apart from these, it also includes 3 pairs of glands: salivary gland, pancreas and liver. डाइजेशन में जो पहला प्रोसेस आता है, नहीं जो पहला प्रोसेस तो नहीं आता, तो डाइजेशन में जो हम पढ़ेंगे that will be oral cavity, pharynx and esophagus for today for this lecture. Next lecture में हम फिर उसकी continuation पढ़ेंगे। तो oral cavity, oral cavity यानी कि मुंह के अंदर जो आपने इंजेक्ट किया है फूड पीस, उसके साथ क्या होता है, क्या मैकेनिज्म या किस प्रोसेस के थ्रू गुजरता है, वो हम पढ़ेंगे ओरल कैविटी के अंदर। सो ओरल कैविटी के अंदर 3 प्रोसेसेस होते हैं: फूड सिलेक्शन, ग्राइंडिंग, लुब्रिकेशन। फूड सिलेक्शन, सबसे पहले जैसे ही बाइट मुंह में जाएगा, पिज्ज़ा का बाइट है, मुंह में गया है, तो वो फूड सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। टंग और टीथ उस बाइट को ऑब्जर्व करेगी, फील करेगी, सेंस करेगी कि ये पीस खाने लायक है या नहीं। एडिबल है तो फर्दर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा ग्राइंडिंग का। एडिबल नहीं है यानी कि कोई हार्ड पीस है इसके अंदर, या कोई डर्ट का पीस है, या टेस्ट अच्छा नहीं है, ओल्ड है, तो उसको थ्रो अवे कर देंगे। लेकिन अगर फूड सेलेक्ट हो जाएगा तो नेक्स्ट फेज आएगा, दैट इज ग्राइंडिंग या च्यूइंग या मेस्टिकेशन। सो ग्राइंडिंग, च्यूइंग या मेस्टिकेशन से मुराद, अब च्यू करने की बारी आ जाएगी, उस लार्ज जो बाइट लिया है उसको तोड़ने की बारी आ जाएगी। तो अब माउथ के अंदर टीथ की हेल्प से वो जो पीस लिया है, आपने बाइट लिया है, वो च्यू करके लार्ज पीस से स्मॉल पीस में कन्वर्ट कर देंगे ताकि वो मोर इजीली पास हो सके ईसोफेगस से। दूसरा ये कि लार्ज जो फूड पीस होता है उसमें एंजाइम्स मुश्किल से कांटेक्ट में आ सकते हैं, या यूँ कहें कि लार्ज पीसेस में सरफेस एरिया बहुत ही कम होता है, इसीलिए स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है फूड को ताकि एंजाइम्स को लार्जर एरिया मिले एक्ट ऑन करने के लिए। थर्ड स्टेप है लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन इज टू गिव मॉइस्टनेस टू सम मटेरियल, सम थिंग, जैसे कि फूड को मॉइस्ट किया जाता है, लुब्रिकेट किया जाता है ताकि इजीली स्वेलो किया जा सके और ताकि उसके अंदर एक उसको वाटरी या मॉइस्टनेस दी जाए ताकि केमिकल रिएक्शन कंटिन्यू किया जा सके। तो फूड को लुब्रिकेट करने के लिए हमें सलाइवा की ज़रूरत होती है। ओरल कैविटी के अंदर 3 जगह हैं जहाँ से सलाइवा आता है। नंबर 1 बिहाइंड द जॉज, नंबर 2 अंडर द टंग, टंग के नीचे, नंबर 3 इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स। यहाँ से सलाइवा आता है और वो सलाइवा इस बाइट के साथ मिक्स हो जाता है। सलाइवा के अंदर एमाइलेज है, लुब्रिकेट तो वो कर रहा है फूड को, साथ उसके अंदर एमाइलेज है। एमाइलेज इज एन एंजाइम, दिस एंजाइम्स ब्रेक डाउन स्टार्च। तो मुंह के अंदर ही ओरल कैविटी में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है किस चीज की, स्टार्च की। एज अ रिजल्ट द फूड बाइट, जो आपने बाइट लिया था वो अब बोलस बन चुका है। बोलस क्या है, ये सेमी सॉलिड स्मॉल स्लिपरी स्फेरिकल मास है जिसको हम बोलस कह रहे हैं। अब
नेक्स्ट इज फेरिंग्स एंड इसोफेगस। अच्छा, अब बॉलस जो है उसको स्वेलो करने की बारी आती है। स्वेलो करेंगे उसको, स्वेलो करने के लिए हमें फेरिंग्स की ज़रूरत होगी और इसोफेगस में पास हो जाएगा हमारा बॉलस। पास होने के लिए उस ट्यूब से पेरिस्टालसिस की ज़रूरत है। पेरिस्टालसिस को डिफाइन कर सकते हैं हम ऐसे कि इट इज़ द वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताती हूँ कि फेरिंग्स के अंदर स्वेलोइंग कैसे होती है और ईसोफेगस के अंदर पेरिस्टालसिस कैसे होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस वीडियो में स्वेलोइंग हो रही है। अब ज़रा अगर आप गौर से देखें तो ये है नेजल कैविटी यानी कि नोज की कैविटी और ये है माउथ की कैविटी जिसको हम ओरल कैविटी कहते हैं। तो नोज की और ओरल कैविटी ये दोनों एक जगह पे मिली हुई है और ये ट्रेकिया और ईसोफेगस ये भी मिले हुए हैं। इनको सेपरेट किया हुआ होता है इस पीस ने जिसको हम ग्लोटिस कहते हैं या एपिग्लोटिस कहते हैं। जब स्वेलोइंग होती है तो कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिससे ये ग्लोटिस ट्रेकिया को बंद कर देता है और ये वाला जो पीस है नेजल कैविटी को बंद कर देता है, जिसकी वजह से नेजल कैविटी से कोई भी सिक्रेशन गले में नहीं जाती और ना ही ट्रेकिया में फूड जाता है। ये प्रोसेस होता कैसे है? During swallowing, bolus is pushed to the back of the mouth by the tongue. The tongue pushes the bolus. Soft palate also moves upward and to the rear. ये जो soft palate है ये ऊपर की तरफ हो जाता है और पीछे, ताकि नेजल कैविटी बंद हो जाए। जब आप फूड को च्यू कर रहे हैं तो टंग की मूवमेंट की वजह से ये जो ऊपर सॉफ्ट पैलेट है ये अपवर्ड एंड बैक जाकर नेजल कैविटी को ब्लॉक कर देता है। When swallowed, the bolus passes the pharynx to enter esophagus. pharynx से पास होने के बाद esophagus में डायरेक्ट आपका फूड जा रहा है। This epiglottis gets covered and ये जो ट्रेकिया है ये ब्लॉक हो जाती है। Now the food will not enter to the trachea and will pass to the esophagus. So this is the process of swallowing. After entering esophagus, अब ये देखें ये जैसे ही बोलस गुजर रहा है esophagus से एक वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन बन रही है। Esophagus is made up of smooth muscles. जैसे ही बोलस गुजरेगा वो जगह आपकी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की वजह से एक वेव लाइक शेप बन रही है। ये वेव लाइक शेप पेरिस्टालसिस है, इसलिए आप पेरिस्टालसिस को डिफाइन कर सकते हो। इट इज दैट wave like contraction and relaxation of smooth muscles in the alimentary canal. So that was all for today. Thank you for listening. Hope you understand.